Hello everyone. Am I audible to all? Yes, sir, you are audible. Okay, thank you, Deepak, for update. And Yes, sir. thank you guys for joining this webinar to aware yourself about Red Hat Linux. And we will discuss today some very important terminology regarding Red Hat Linux. Okay, so let's start the session. Uh, before starting the session, actually, I have to introduce myself. And my name is Arvind Kumar, and I'm working as a system administrator with Crow Cybersecurity now. And I have more than 11 years of experience in IT sector in different domains. And I'm postgraduate in IT management, also globally certified for Amazon Web Services as well as Red Hat Linux, and also for Microsoft Certified Technologist Specialist. So these are my achievements in IT sector. Okay, so I hope it is enough about me. And now, can you see my screen? Please update. Can you see my desktop? Yes, sir. We can see your desktop. Okay, thank you again for update. So basically, we have some few points regarding to this webinar, and as you know already about this webinar, but it will tell you. Basically, it is regarding for the main content or main topic is regarding to this webinar is awareness about the RSSA training plus certification. Okay, so we will discuss mostly things regarding to this also, and no doubt some extra content we will also discuss regarding Reddit, just like why we join, why we do Red Hat Linux in our IT sector, what is the career regarding to this. So we will also discuss about these terms. Okay, so now we can start the session. So I have some few points in the slides to explain or to better demonstrate you regarding Red Hat Linux. Okay, so let's start the session. So as you all knows about Crow Cybersecurity, it's a cybersecurity institute and company also that provide different domain training plus certification. And today I will tell you about Red Hat Linux. Okay, so firstly, I will tell you about the Red Hat. Okay, so I hope few of you aware about Red Hat company. Uh, anyone hear about this company? Yes, sir. I have hear about it from some of my friends. They like concluded it as a cyber security like type of thing. I mean, company. Like as of I heard right now. Maybe you Okay, can aware me more about it. okay, good. Thank you for update. Actually, it's a global software company. Means it provide software services on the global level. Also, it provide different domain awareness, just like cloud computing, and uh, you can say that certification in Red Hat Linux, and open source softwares, and more things regarding to that, just like application development and DevOps, and a lot of certifications are there to perform for you. So if I talk about the first point regarding to that, actually it's a world's leading provider for open source software solutions.
Means you know that about the open source. Open source means that is freely available, and also the source code of that is also available for the development. Okay, so that is regarding to this. Uh, Guys, are you comfortable with English, or we can start the session in mix Hindi plus English, as you know that. सर हिंदी और इंग्लिश मिक्स कर दी। ओके ओके, थैंक यू फॉर अपडेट। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं रेडिट के बारे में, तो यू नो दैट अबाउट इन द वर्ल्ड दो कंपनियां ऐसी है गाइस जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। एक उनमें रेडिट है और एक आपका माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो काफ़ी बड़े लेवल पे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है, और जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम लोग यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसी टाइप से आपका रेडिट जो है, जो रेडिट लाइनेक्स है, वो रेडिट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपको रेडिट प्रोवाइड करता है, सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मोस्टली एप्लीकेशंस है या ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो फ्रीली अवेलेबल है। means you can use them for the personal use freely. Okay, they are also used in production environment for different purpose. And आपको रेडिट जो है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है। आप अगर क्लाउड कंप्यूटिंग में सुनेंगे ओपन शिफ्ट जैसे टर्म है, या कुछ और टर्म्स है रिगार्डिंग टू दैट, तो वो सभी क्या है, आपका क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कराती है। क्लाउड कंप्यूटिंग आपको आपको बताना चाहूँगा, जस्ट लाइक हमारा जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसी तरीके से क्लाउड पे भी हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे हमारे लोकल इन्वायरमेंट में कंप्यूटर्स होते हैं, मशीनें होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, उसी तरीके से हम क्लाउड पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। वहाँ पे आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। मीन्स आपको अपना केवल एक इंटरनेट कनेक्शन और कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिससे कि आप अपनी कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं क्लाउड के ऊपर। तो वहाँ से आप सर्विसेज डिप्लॉय कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप क्लाउड से यूज़ कर सकते हैं। और ओनली यू हैव टू पे फॉर ओनली यू हैव टू पे रेंट फॉर दैट ओनली। मतलब आपको वहाँ पे कुछ ज़्यादा कॉस्ट इन्वेस्ट नहीं करना होता। You do not have to need to purchase your own infrastructure for that. So cloud computing भी आपको रेडिट प्रोवाइड कराता है। आपको क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे स्टोरेज सोल्यूशन है, यू कैन पुट योर डेटा ऑन द स्टोरेज ऑफ रेडिट। जैसे आपका गूगल ड्राइव है या माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, उसी तरीके से गूगल का भी अपना स्टोरेज सोल्यूशन है, जहाँ पे अपना आप डेटा पुट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका यूज किया जाता है ओवर द ग्लोबल, जो रेडिट एंटरप्राइज लाइनेक्स है, RHEL जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं। बेसिकली ये ग्लोबल लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये एक मास्टरपीस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका इस्तेमाल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। आप लोगों ने जैसे बेसिकली SSH की सर्विस है, और भी बहुत सारी सर्विसेज के बारे में आपको मैं बताऊंगा आने वाली स्लाइड में। तो वो सभी आपको प्रोवाइड कराता है रेडिट एंटरप्राइज लाइनेक्स। सो इट इज आल्सो डेवलप्ड बाय द रेडिट कंपनी। और बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिनको आप यूज कर सकते हैं लिनक्स के थ्रू, और वे फ्री है, आपको उनके लिए कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो दैट इज आल्सो कम इनटू रेडिट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा अगर रेडिट की बात की जाए, तो रेडिट में हमारे बहुत सारे सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। मोर देन 45 सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, जिनको आप कर सकते हैं। यानी कि पूरा के पूरा एक कैरियर पाथ आपको प्रोवाइड करा सकता है रेडिट, जिसका यूज करके आप अपना लिनक्स बेस्ड कैरियर चूज कर सकते हैं। एंड अगर हम बात करें, रेडिट एक काफ़ी बड़े इन्वायरमेंट को कवर करता है IT इंडस्ट्री के, जिसमें लगभग 70+ एकेडमीज है और यूनिवर्सिटीज है रिगार्डिंग टू दैट प्रोवाइड
training and solutions for Red Hat actually, Red Hat services also. Okay, 100 से ज़्यादा कंट्रीज में Red Hat जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराता है रिगार्डिंग टू लर्निंग एंड मोर, और 60+ कोर्सेज आपके अवेलेबल है Red Hat के, जो एक्चुअली आप कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दैट। सो और Red Hat आपके जैसे कि मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको प्रोवाइड कराता है, मतलब सॉफ्टवेयर के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इसका यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस है बहुत सारे जिनको यूज किया जाता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी आते हैं, और कुछ ओपन सोर्स में आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। मिडिलवेयर की तरह भी काम करता है, जो आपको इंटरेक्ट कराता है हार्डवेयर के साथ, और दूसरे नेटवर्क से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दैट। एंड ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड कराता है बहुत सारे सर्टिफिकेशंस के रिगार्डिंग, तो आप यू कैन टेक देम आल्सो। सो आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट सम मोर थिंग्स, जैसे Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसी के रिगार्डिंग जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है RSCC की, तो वैसे और भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन इसमें आप कर सकते हो, बट स्टार्टिंग जो Red Hat की होती है, Red Hat इन्वायरमेंट में जाने के लिए या Red Hat में अपना कैरियर पाथ चूज करने के लिए, वो आपकी सबसे पहले RSCC से ही होती है। तो बेसिकली अगर हम Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स की बात करते हैं, तो मेनली इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है प्रोडक्शन के अंदर। तो बहुत सारी टाइप की सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है। कुछ कॉमन सर्विसेज के मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका वेब सर्विसेज है, जिसके द्वारा वेब पेज डिस्प्ले कराए जाते हैं नेटवर्क के अंदर। इसके अलावा FTP की सर्विस है, जिसके द्वारा आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं या फाइल अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिनक्स सर्वर। ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और भी बहुत सारी सर्विसेज है, जैसे SSH की सर्विस है, जिसके द्वारा आप रिमोट कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर सकते हैं विद अ रिमोट मशीन। सो ये सभी जो बेनिफिट्स आपको Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स प्रोवाइड कराता है, और ये एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। और इसके जो देखिए, अगर कोई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑब्वियसली उसके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी होंगे। तो जैसे आप बात करें Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स के जो क्लाइंट के रूप में यूज किए जाते हैं, उबंटू है, फेडोरा है, बहुत सारे वर्जन्स है जिनका इस्तेमाल एज ए क्लाइंट यूज किया जा सकता है Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स के, जिनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें आपके माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट भी हो सकते हैं, तो ये सभी क्या कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं फ्रॉम द Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स। ओके, सो अगर देखिए एक चीज और है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपके लिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है लिनक्स करना, बिकॉज आप जितने भी वेरिएंट लिनक्स के यूज करते हैं साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, जैसे कैली लिनक्स है, बैकपैक है, या पैरेट है, और भी बहुत सारे फ्लेवर्स है जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, जो आप साइबर सिक्योरिटी के अंदर यूज करते हैं। तो ऑल द कमांड्स रिगार्डिंग टू दैट, आप लोग जो चलाओगे उन ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे, उनका जो अवेयरनेस है आपको Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स से मिल जाएगा। दैट्स मीन ये एक मास्टरपीस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर एक लिनक्स प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है। दैट्स मीन इसकी जो कमांड्स है वो एक कॉमन कमांड है रिगार्डिंग टू ऑल द डिफरेंट flavor of Linux. Okay, you know that more than 300 Linux flavors are available in the market. और अगर हम OpenShift सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमारा काली लिनक्स मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसकी जो कमांड्स है आप Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स में पाएंगे, बट जो सर्टिफिकेशन कराया जाता है वो Red Hat एंटरप्राइज लिनक्स का, वो एक्चुअली इस पर्पज से कराया जाता है कि आपको अगर प्रोडक्शन में भी काम करना है, तो इट इज बेनिफिशियल फॉर दैट ऑल्सो, ऑफेंसिव सिक्योरिटी प्लस प्रोडक्शन इन्वायरमेंट ऑल्सो, कि इफ यू वांट टू गो विद प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। तो ये आपका हर एक पर्पज के लिए रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है।
तो ये भी एक बेनिफिट आपको इसका मिलता है, जो कि एक प्रोडक्शन प्लस you can say that cyber security field also, just like you know that कि वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पे कमांड चलानी पड़ती है जो CLI बेस्ड होते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं। तो वहाँ पे आपका जो लिनक्स अवेयरनेस है बहुत मस्त हो जाता है। तो इसके लिए आपको रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स सजेस्ट किया जाता है। और भी और आप इंडिविजुअली भी इसको करके बहुत सारे फील्ड में इसको यूज कर सकते हैं। मैं कुछ फील्ड्स आपको दिखाऊंगा जो आप इस फील्ड में यूज कर सकते हैं RSS का। तो देखिए यहाँ पे एक इसी के रिगार्डिंग एक स्लाइड मैंने रखी हुई है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर आप RSS से करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे देखिए यहाँ पे कॉमन पॉइंट लिखा हुआ है, यू कैन इजीली वर्क विद ऑल ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। जितने भी लिनक्स के ऑफेंसिव सिक्योरिटी वर्जन है तो उन पे आप इजीली काम कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलेगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी डोमेन में भी काम करना चाहते हैं तो आपको ये एक बेस्ट बेनिफिट मिलेगा कि आप सारे ऑफेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इजीली हैंडल कर पाएंगे। ओके, और उनकी सर्विसेज मतलब उनके द्वारा सर्विसेज अटैक किए जाते हैं या उनको चेक किया जाता है उनकी वल्नरेबिलिटीज के लिए, वीक पॉइंट्स के लिए या लूप होल्स के लिए या पोर्ट स्कैनिंग के लिए, वो आप इजीली कर पाएंगे अगर आपने रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का ट्रेनिंग लिया होगा। तो बिकॉज आपको एक मास्टरपीस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो कमांड्स है वो सभी जगह एप्लीकेबल होगी। तो ये भी आपको एक बेनिफिट मिलता है। इसके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो आपको फ्रीली अवेलेबल है, तो आप फ्री में उनको इस्तेमाल कर सकते हो। एज यू नो दैट जितने भी एप्लीकेशंस है आपको वो फ्रीली अवेलेबल मिलेंगे। और सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं जिनका इस्तेमाल आप यूज कर सकते हैं क्योंकि एक लार्ज कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। तो लार्ज कम्युनिटी मींस जो डेवलपर्स है जो नए नए टूल्स बनाते रहते हैं रिगार्डिंग टू डिफरेंट डोमेन्स, तो वो आपको फ्री में अवेलेबल रहेंगे, आप उन्हें यूज कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये भी एक बेनिफिट आपको इसका मिलता है कि इसकी एक जो कम्युनिटी है वो काफी बड़ी है बेसिकली, जिसका इस्तेमाल करके आप लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर से डाउनलोड कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल में ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल्सो बेनिफिट फॉर यू। एंड बेसिकली देखिए अगर सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सिक्योरिटी पैरामीटर्स का। तो लिनक्स जो है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है RHEL रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, तो सिक्योर सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए पॉपुलर है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो। मीन्स ये माइक्रोसॉफ्ट से भी ज़्यादा सिक्योर है इन सम टर्मिनोलॉजीज। क्योंकि देखिए लिनक्स पे .exe फाइलें सपोर्ट नहीं होती है और ऑटो एग्जीक्यूट नहीं होता है यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर फाइल्स है या कोई भी कोड है जो आपने ऑटो एग्जीक्यूशन में डाला हुआ है, तो ये सपोर्ट ही नहीं करता है उन फाइलों को। सो दैट्स मीन वायरस आने के जो चांसेस होते हैं बहुत रेयर होते हैं रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स के अंदर। और आप जो है सिक्योर प्लेटफॉर्म पे सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। तो आप ज़्यादातर अब आने वाले टाइम में देखिए रेड हैट का जो रेशियो है डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है, जिसके द्वारा क्या है कि प्रोडक्शन में जो सर्विसेज डिप्लॉयमेंट का कंसेप्ट है रेड हैट पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक तो ये कि ये ओपन सोर्स है और दूसरा इसके एप्लीकेशंस फ्री है, तो आपको उसके लिए भी कुछ पे नहीं करना है और इजीली आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। जस्ट एक चीज है इसमें, लेकिन ये थोड़ा आपका प्रोफेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑब्वियसली जिसको CLI पे काम करना, मतलब ऑब्वियसली जब CLI आप यूज करोगे तभी आपको इजीली वो चीजें समझ में आएगी। तो टोटली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो CLI बेस्ड है। जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स है ये CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मीन्स कमांड लाइन इंटरफेस आपको देता है जिसके द्वारा आप काम करते हैं। ओके, तो अगर देखिए इसके बाद अगर मैं आपको कुछ एक पिक्चर दिखाऊं रिगार्डिंग टू
अगर जो RSSC की ट्रेनिंग है इसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं या किस किस डोमेन में जाके आप काम कर सकते हैं। अगर आपके पास RSSC का सर्टिफिकेशन है या RSSC की ट्रेनिंग है तो आप एक तो सर्विस डिप्लॉयमेंट में जा सकते हो, जिसके लिए आपकी जो प्रोफाइल होती है कैरियर के लिए वो सिस्टम एडमिन की होती है। तो सिस्टम एडमिन जो है प्रोडक्शन के अंदर कंपनीज के अंदर एक प्रोफाइल होती है जिसके द्वारा बेसिक जो मैनेजमेंट है सर्विसेज का वो परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रोफाइल आप यूज कर सकते हो या इस प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर RSSC सर्टिफिकेशन। इसके अलावा आप मशीन लर्निंग या आप कंटेनराइजेशन, देखिए लिनक्स में काफ़ी टॉप लेवल तक का सर्टिफिकेशन है। तो ऑब्वियसली अगर आप RSSC करते हैं तो उसके बाद आपके जो ऑप्शंस है वो ओपन होते चले जाते हैं रिगार्डिंग टू रेड हैट एंड डिफरेंट डोमेन ऑल्सो। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है RSSC के अंदर कंटेनराइजेशन का। तो उसके अंदर थोड़ा सा आपको अवेयरनेस कराया जाता है कि व्हाट इज एक्चुअली कंटेनर। तो उसके रिगार्डिंग भी आपको बेनिफिट मिलता है इफ यू आर गोइंग फॉर द ओपनशिफ्ट और सम एडवांस डोमेन, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा RSSC का। तो ये भी एक आपको बेनिफिट मिलता है। IoT में भी आप RSSC की ट्रेनिंग का यूज कर सकते हैं। IoT में भी कुछ जो आपके टूल्स होते हैं CLI बेस्ड होते हैं जिनको आप ऑपरेट अगर करते हैं तो आपको लिनक्स की जो नॉलेज है आनी चाहिए। इसके अलावा डेटा साइंस है, डेवऑप्स है और भी बहुत सारे जो फील्ड है आप जिनको एक्चुअली चूज कर सकते हैं। जैसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है, अगर आप क्लाउड पे भी जाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको लिनक्स की अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाउड पे जो सर्विसेज दी जाती है वो दोनों ही प्लेटफॉर्म से दी जाती है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है चाहे वो रेड हैट है। और बेसिकली अगर आप रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स की ट्रेनिंग करते हैं तो आपको यूनिक्स में भी बेनिफिट मिलता है। अगर आप यूनिक्स बेस्ड डोमेन में काम करते हैं तो वहाँ पे भी आप इजीली काम कर पाएंगे। गाइस मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपर? Yes, sir. Listen. Okay, thank you for update guys. Actually someone says no sound. Nitesh Kumar. No, sir. Sound is clear. नहीं सर आ रही है। Okay, thank you. Wait guys. सर अब नहीं आ रही। Hello. Am I audible guys? हाँ जी सर, ओके। यस सर अब आई अब आई। Thank you. तो देखिए प्रोडक्शन में अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की जो प्रोफाइल होती है, जैसे आप AWS करते हैं तो उसमें भी आपको रेड हैट के भी जो VMs मिलती है क्लाउड पे और अदर कंपनीज की मिलती है। तो बेसिकली वहाँ पे भी आपको बेनिफिट मिलता है लिनक्स ट्रेनिंग का। तो अगर आपने RSSC किया होगा तो बेसिकली वहाँ पे आपके जो वर्चुअल मशीन्स होती है EC2 जिसको बोलते हैं इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, तो उनको इजीली आप क्रिएट कर पाओगे और उनके बारे में समझ पाओगे और वहाँ पे सर्विस डिप्लॉयमेंट कर पाओगे आसानी से। सिक्योरिटी जो कि हमारा मेन डोमेन है, सिक्योरिटी फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका RSSC, जो कि आपको हर जगह बेनिफिट देगा अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड को चूज करते हैं, जो कि एक सिक्योरिटी फील्ड है। सॉरी। तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के फील्ड में भी काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जो लिनक्स के टूल्स है वो सारे उनको चलाने में आसानी रहेगी आपको, और मतलब आप सिक्योरिटी के प्लेटफॉर्म पे आसानी से काम कर पाओगे, यू कैन से दैट। सो दैट इज द बेनिफिट अबाउट दिस
RSSI training to you. और if I talk about some more things regarding to that, तो ये सभी फील्ड्स है गाइस जिस पे आप काम कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे फील्ड्स ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पे मार्क नहीं किए हुए हैं जिनमें आप काम कर सकते हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस RSSI ट्रेनिंग, तो मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं रेड हैट की ट्रेनिंग के बाद। और हर जगह आईटी के अंदर इसका रिक्वायरमेंट है और हर जगह आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बेसिकली। सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग रिगार्डिंग टू RSSI। तो देखिए कुछ कंपनीज को मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड किया है जो रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स पे या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रही है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट की क्वेरीज होती है कि सर लिनक्स की ट्रेनिंग के बाद इसे यूज किस कंपनी में करें। तो कंपनी देखिए कोई एक कंपनी नहीं है गाइस, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें लिनक्स का इस्तेमाल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। देखिए ओपन सोर्स होने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आप उसे यूज कर सकते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में और उसका ज्यादा चार्जेस भी नहीं। देखिए मैं आपको बता दूं चार्जेस क्यों बोल रहा हूँ मैं, दो तरीके से यूज किया जा सकता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक तो पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई चार्जेस नहीं देना है, ठीक है। बट अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में यूज कर रहे हैं तो आपको रेड हैट का सपोर्ट लेना रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि वहाँ पे आप जो सर्विसेज डिप्लॉय कर रहे हैं उनमें को अगर कोई इशू आता है तो उसके लिए अपडेट्स इशू करना रेड हैट का टास्क है या रेड हैट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या उसको इशू को जो रिजोल्व कराना या ट्रबलशूट कराना वो आपके रेड हैट एंटरप्राइज रेड हैट का एक्चुअली टास्क है। रेड हैट की सपोर्ट आपको तभी मिलती है जब आप उसका सब्सक्रिप्शन लेते हो, बट इट्स ओनली फ्यू अमाउंट फॉर दैट, मीन्स आपको अपडेट इशू करने के लिए वो चार्जेस करता है, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, उससे आप यूज कर सकते हैं। So one question is my side. यस यस प्लीज आस्क। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि लिनक्स जैसा कि ये सर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि ये कंपनीज हैं, तो सर ये जो गवर्नमेंट जैसा इसमें एक बार एक साइन दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका थोड़ा एक डिफाइन कर देते। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारे जो मार्क है, ये जो सारी कंपनियों के लोगोस है इसमें जो मार्क किए गए हैं, ये सभी किसी न किसी पर्पज के लिए लिनक्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब स्टार्ट किया था कि रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स का इस्तेमाल जो है सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में किया जाता है, ठीक है। और जो सर्विसेज है जैसे FTP है, DNS है, DNS को बाइंड बोलते हैं बेसिकली लिनक्स में, DHCP है, FTP है, SSH है, वेब सर्विसेज है, सांबा सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज जो है रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कराता है। तो जो ये कंपनियों के लोगोस है ये लिनक्स को किसी न किसी यूज में ले रही है, चाहे वो अपनी वेब सर्विस को डिप्लॉय करने के लिए यूज कर रही है, चाहे वो फाइल अपलोड या डाउनलोड करवाने के लिए यूज कर रही है, चाहे वो किसी और पर्पज के लिए यूज कर रही है। क्योंकि देखिए डे बाय डे लिनक्स का जो इस्तेमाल है वो बढ़ता जा रहा है प्रोडक्शन में, क्योंकि वो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है और कम चार्जेस अप्लाई करता है रेदर देन अदर कंपनी, ठीक है। तो ये एक बड़ा रीजन है और सिक्योरिटी सबसे मेजर पॉइंट होता है कंपनीज के लिए। तो लिनक्स बहुत सिक्योर प्लेटफॉर्म है क्योंकि इसमें CLI में ही काम होता है, केवल प्रोफेशनल इस पे काम कर सकते हैं। तो सर अलग अलग, हाँ बिल्कुल एक पूछिए। क्वेश्चन था सर। सर जैसे कि अगर ये पर्टिकुलर किसी सर्विस में काम कर रहा है, ये जो जितनी भी कंपनियां हैं, तो अगर उसके लिए एक सर्विस के लिए कितने एम्प्लॉय हायर करता हो? देखिए अगर हम डोमेन्स की बात करें, जैसे कि स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था कि इतने सारे सर्टिफिकेशन आप इसमें कर सकते हो 45+, ओके, और 60+ कोर्सेज है। तो उसी के बेसिस पे अगर आप एक बेसिक कैलकुलेशन भी करते हैं तो अगर एक सर्वर रेड हैट का इम्प्लीमेंट किया जाता है प्रोडक्शन के अंदर तो उसमें 2 तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए एटलीस्ट मिनिमम लेवल पे, ओके।
मतलब एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए जो सर्विसेज को टैकल कर सके, और प्लस 1 सिस्टम इंजीनियर चाहिए जो ऑटोमेशन और उससे संबंधित टास्क को हैंडल कर सके। उसके बाद आपको सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए भी एक बंदा चाहिए जो उस पे ये चेक कर सके कि कौन सी सर्विसेज में क्या इशू आ रहा है। बेसिकली जैसे कोई सिक्योरिटी लूप होल तो नहीं आ रहा है, जैसे जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी एनालिस्ट। तो इस तरीके से कम एक 5 बंदों की टीम होती है जो एक छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में भी चाहिए होती है लिनक्स की सर्विसेज को डिप्लॉय करने के लिए। और अगर प्रोडक्शन में बड़ी है तो ऑब्वियसली सर्वर्स की जो संख्या होगी काफी ज्यादा होगी। देखिए, अगर मैं एक नॉर्मल प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, 1 या 2 सर्वर जहाँ पे लगे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर 25 या 30 सर्वर लगे हुए हैं तो वहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली अबाउट 100 एम्प्लॉय या इंजीनियर्स की होगी जो चीज को टैकल करेंगे, क्योंकि पर सर्वर 2 कैंडिडेट चाहिए जो उसे इजीली टैकल कर सके, एक बैकअप के लिए और एक मेन उस पे वर्क करने के लिए। ठीक है, तो काफी बड़ी क्वांटिटी में आपको इंजीनियर्स चाहिए अगर बड़ा नेटवर्क है, आपकी बड़ी एमएनसी है तो उस केस में। ओके, ओके क्योंकि देखिए रेडिट आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा रहा है, ऑटोमेशन भी प्रोवाइड करा रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग भी प्रोवाइड करा रहा है। तो ऑब्वियसली जिस जिस प्लेटफॉर्म पे आपको सर्विसेज डिप्लॉय करनी है तो उस प्लेटफॉर्म के लिए इंजीनियर आपको हायर करना पड़ता है ना। तो चीज है, तो जो सर्विसेज है उनको मेंटेन करने के लिए, उनको डिप्लॉय करने के लिए प्रोडक्शन में आपको इंजीनियर की रिक्वायरमेंट हो। ओके, और सर एक और क्वेश्चन था कि अगर कोई सिर्फ ओनली सर्टिफिकेशन करके कहीं जॉब अप्लाई करता है देन वो कर पाएगा जॉब, या उसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए? ये मैंने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ही बताई है। अगर आप आरएसएसए की ट्रेनिंग करते हैं, जैसे कि मैं अभी स्टार्टिंग में ही बोल रहा था कि ये स्टार्टिंग सर्टिफिकेशन है और इन सभी डोमेन्स में आप काम कर सकते हो जाके। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको खाली लिनक्स पे ही काम करना हो, क्योंकि लिनक्स का प्लेटफॉर्म एक सपोर्टिंग रोल में भी काम करता है। ओके, अगर आरएसएस से आप कर लेते हैं तो ये एक सपोर्टिंग रोल में भी काम करेगा, और साथ में आपको अगर आप खास तौर पे लिनक्स सर्विसेज प्रोवाइडर की कंपनी में यूज जा रहे हैं, या आपकी प्रोफाइल जो है ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको लिनक्स की सर्विसेज मेंटेन करनी है, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो फिर बेस्ट है। अगर आप देखिए 3 फील्ड में मैं आपको बेस्ट बताऊंगा यहाँ पे जो सबसे ज्यादा यूज आप लिनक्स का कर सकते हैं। एक तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे सिस्टम इंजीनियर हो, क्योंकि ये सभी जो फील्ड है रेडिट के फील्ड है, इनमें रेडिट की सर्विसेज डिप्लॉयमेंट या मैनेजमेंट ही आता है। ओके, या ऑटोमेशन आता है। ऑटोमेशन मीन्स कि ऑटोमेटिकली चीजें नेटवर्क में होना, क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी होगी उसमें सर्वर्स की जो क्वांटिटी होगी उतनी ज्यादा होगी, और उनको मेंटेन करने के लिए आपको एक एक करके सर्वर को हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा। तो वहाँ पे आपका ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एनसीबल आपको आरएससी में अवेलेबल कराया जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो उसमें प्लेबुक्स बनाई जाती है जिनका इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क में ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो एक तो ये फील्ड हो गया आपका। दूसरा है आपका सोल्यूशन आर्किटेक्ट का फील्ड। इसमें भी आप आरएसएस से ट्रेनिंग का बेनिफिट बेस्ट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी काम करोगे उसमें कहीं ना कहीं रेडिट का जो पोर्शन होगा वो ज्यादा मिलेगा रेदर देन माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको अगर CLI यूज करना आता होगा तभी आप उस पर काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं काम कर पाओगे। ओके, तो लिनक्स की सर्विसेज तो तभी मेंटेन कर पाओगे जब आप उससे फेमिलियर होंगे। हम राइट? क्योंकि देख ये प्रोफाइल भी ऐसी है जिसमें आपको ये चीजें करनी पड़ती है। और तीसरे है सिक्योरिटी डोमेन। ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का डोमेन, इसमें तो बेस्ट यूज है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स जो है काली लिनक्स के और पैरेट के या बैकट्रैक के जो लिनक्स बेस्ड है बेसिकली। अगर आपको लिनक्स की अवेयरनेस नहीं होगी तो आप उसमें प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस फील्ड के लिए भी आरएसएससी की जो ट्रेनिंग है मस्ट है। ओके, so these are the special field that I suggest you to work for after RSSC training. Okay, so any other question regarding to this, guys? Till now? No, sir. Anybody? Okay, good, thank you. So let's proceed further.
सो मैंने ये बताया कि आपको इन सभी कंपनी में कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्मेट में लिनक्स का इस्तेमाल मिलेगा या यूनिक्स का इस्तेमाल मिलेगा। तो बेसिकली दोनों ही CLI बेस्ड है और इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सर्विसेज डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप RSSI की ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें आपको क्या क्या मेजर टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए RSSI की जो ट्रेनिंग है उसके अंदर 2 बुक्स कवर की जाती है, एक RH 124 और एक RH 134। ठीक है, तो ये जो 2 बुक्स है ये आपको कराई जाती है जिनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 1 और 2 भी बोलते हैं, मतलब RSA 1 और SA 2। बट इनका जो बुक कोड होता है वो 124 और RH 134, ये 2 बुक कोड होते हैं। ओके, और इसको अगर आप रैपिड ट्रैक में करना चाहते हैं, रैपिड मीन्स फास्ट ट्रैक में, ओके, तो इसको फास्ट ट्रैक में भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको RH 199 कोड प्रोवाइड किया जाता है जिसका इस्तेमाल करके आप फास्ट ट्रैक में ये कोर्स या इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, सो ये ट्रेनिंग का मतलब कंसेप्ट है, ये बुक कोड्स है जिनको आप यूज कर सकते हैं RSSI ट्रेनिंग के लिए। और अगर हम लोग ये देखिए ट्रेनिंग्स लेते हैं तो हमें मेजर टॉपिक्स क्या क्या कवर करने को मिलेंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। तो देखिए हमारा जो लिनक्स है उसके अंदर यूजर मैनेजमेंट एंड ग्रुप मैनेजमेंट हम आसानी से सीख जाएंगे, कैसे यूजर्स क्रिएट होते हैं, कैसे यूजर्स रिमूव किए जाते हैं, उनकी परमिशंस, उनके पासवर्ड पॉलिसीज, उनके ग्रुप मैनेजमेंट, ग्रुप मेंबरशिप, और regarding to that all the activity कि which user can access which file or directory और which user cannot access anything, मतलब वो चीज हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कौन यूजर लॉगिन कर सकता है, कौन यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है। all that type of activity we can perform here। okay, so ये आपका आ जाता है यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। इसमें आपको परमिशंस कंट्रोल करना भी बताया जाएगा कि किसी यूजर को क्या राइट्स मिले, वो कैसे कंट्रोल करें। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग सर्विसेज भी आती है इसमें, मतलब जो प्रोडक्शन में सर्विसेज चल रही है उनको मॉनिटर कैसे करना है। मॉनिटरिंग मीन्स किस सर्विस का क्या स्टेटस चल रहा है, कोई सर्विस स्टॉप है या चालू है, या कोई इशू आ रहा है किसी सर्विस में, तो ये चीज हम डिसाइड कर सकते हैं आफ्टर दिस। प्रभु सुषमा, is this certification course free? No, it's not a free course actually. It have a training cost plus certification cost as well, so it's not a free course. तो आफ्टर दैट आप इसमें मॉनिटरिंग करना सीख जाएंगे कि कौन सी सर्विसेज वर्किंग में है, कौन सी डाउन चल रही है, क्या इशू आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये चीज कवर अप हो जाएगी जिससे कि आप सर्विसेज को मॉनिटरिंग और मैनेज कर पाओगे। मैनेज मीन्स कि किस सर्विस को रोकना है, स्टॉप करना है, किसको स्टार्ट करना है, तो ये चीजें आपको जैसे कोई चेंजेस किए जाते हैं सर्विसेज के अंदर उसके बाद रिस्टार्ट करना है, तो चीज यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगी और उसको आप इजीली मैनेज कर पाओगे, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी सर्विस को आप इजीली कंट्रोल कर पाओगे आफ्टर दिस कोर्स। इसके रिगार्डिंग SSH कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। तो SSH के अंदर देखिए सिक्योर सेल, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि रिमोट कनेक्टिविटी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो और एक मशीन पे बैठे हुए दूसरी मशीन का SSH लेके उस पर काम कर सकते हो, और इफ एनीवन नीड सम हेल्प फॉर दैट तो वो भी प्रोवाइड करा सकते हो, दैट इज कवर अप इनटू SSH। ओके, सिक्योर सेल। तो ये चीज कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इसको कैसे यूज करना है, ये सभी इसके अंदर इस सेशन में कराया जाता है। तो ये दीज थिंग विल बी कवर अप इन दिस सेशन। आफ्टर दैट लॉग मैनेजमेंट आपका यहाँ पे सिखाया जाएगा, मतलब RSSI के अंदर या जो ट्रेनिंग आपको मिलेगी उसके अंदर लोग्स बेसिकली जो इवेंट्स होते हैं सिस्टम के अंदर, लिनक्स मशीन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई ऑथेंटिकेशन होता है उसके रिगार्डिंग लॉग जनरेट करता है लिनक्स मशीन। तो जो लोग्स होते हैं उनसे ये पता लग जाता है कि किस टाइम पे कौन सी सर्विस में क्या इशू आएगा, और वो लोग हम कैसे रीड कर सकते हैं, उनको कैसे
टैगल कर सकते हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं ट्रबल शूटिंग के लिए, है ना, वो चीजें यहाँ पे आपको कवर अप कराई जाती है सिस्टम लॉग मैनेजमेंट में। ओके, अगर इसके बाद हम बात करते हैं नेटवर्क सेटिंग्स की, तो नेटवर्क सेटिंग्स हम लोग इजीली यहाँ पे कवर अप कर पाएंगे, जैसे टीसीपी सेटिंग कैसे चेंज करनी है रिगार्डिंग टू दैट, और बैकअप फाइल दैट मीन आर्काइव फाइल्स कैसे क्रिएट की जाती है जिससे कि हम अपना डेटा जो है बैकअप भी कर सके, तो वो चीज भी यहाँ पे आपको कवर अप कराई जाती है लिनक्स मशीन के अंदर। पैकेज मैनेजमेंट आपको यहाँ पे लिनक्स का कराया जाता है। पैकेज देखिए, अगर रेड हैट लिनक्स की बात की जाए तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो .rpm फॉर्मेट में होते हैं, जैसे विंडोज में .exe फॉर्मेट में होते हैं, वैसे ही रेड हैट में आपके .rpm फॉर्मेट में होते हैं। ओके, तो जो rpm पैकेजेस होते हैं उनको स्टोर कैसे करना है ना, उसको अनस्टोर कैसे करना है, उनको मतलब अपडेट कैसे करना है, वो सभी चीजें आती है पैकेज मैनेजमेंट के अंदर। इसके लिए आपको जो है यम एंड DNF जैसी रेपोजिटरी कराई जाएगी यहाँ पे, जो उनके द्वारा RPM पैकेजेस को मैनेज कर पाओगे। सो दैट विल बी आल्सो कवर अप इनटू RSS से ट्रेनिंग। इसके अलावा फाइल सिस्टम के बारे में आपको अवेयरनेस कराई जाएगी, जिससे कि आप फाइल सिस्टम के बारे में जान सकते हैं कि जो स्टोरेज है उसके ऊपर फाइल सिस्टम कौन कौन से होते हैं या कौन कौन से इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं, डिफॉल्ट फाइल सिस्टम क्या होता है लिनक्स का, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ आपको इसमें बताई जाएगी। साथ ही कॉकपिट सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, जिसके द्वारा आप लिनक्स मशीन का वेब कंसोल के थ्रू भी मैनेजमेंट कर सकते हो रिमोटली किसी भी लोकेशन से अपने प्रोडक्शन के अंदर, जिससे कि आप देखिए SSH भी एक ऑप्शन है आपके पास और कॉकपिट भी एक ऑप्शन है। दोनों ऑप्शन आपके लिए इजी है यूज करना। ये वेब कंसोल के थ्रू आप यूज कर सकते हो, और ये आप SSH यानी कि रिमोट कनेक्टिविटी के लिए शेल एक्सेस कर सकते हो, शेल सेशन। तो वैसे इसमें भी आपको दोनों चीजें मिल जाएगी, वेब कंसोल भी मिल जाएगा और टर्मिनल भी मिल जाएगा जिससे आप काम कर सकते हो। तो कॉकपिट सर्विस दोनों चीजें प्रोवाइड कराती है। इसके अलावा आपको शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में पता लगेगा। RSSI की ट्रेनिंग के बाद आप शेल स्क्रिप्टिंग भी कर पाओगे, मतलब एक स्क्रिप्ट फाइल बना के कैसे टास्क को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना है, तो दैट विल बी ऑल्सो डिफाइन टू यू, एंड कैसे उसे बनाना है वो सारी चीजें इसमें कवर अप की जाएगी। फ्यूचर टास्क शेड्यूल कर सकते हैं कि ऑटोमेटिकली उस टाइम पे या उस दिन कोई टास्क परफॉर्म करना है आपको लिनक्स मशीन के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा, जिसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, और इसे बोलते हैं फ्यूचर शेड्यूलिंग। ओके, तो इन फ्यूचर जो भी आपको टास्क सेट करना है कि 2 बजे या नेक्स्ट डे या आफ्टरनून में आपको कोई टास्क है, आपको आप नहीं उस टाइम पे अवेलेबल हो, तो ऑटोमेटिकली वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा। तो इस टाइप की शेड्यूलिंग भी आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें ACL कराया जाएगा, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो कि एडवांस लेवल परमिशंस होती है। एडवांस लेवल परमिशंस में आप कस्टमाइज कर सकते हो परमिशंस लेवल को इंडिविजुअल यूजर के बेसिस पे या इंडिविजुअल ग्रुप के बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है परमिशंस का, कि किस डायरेक्टरी एंड फाइल को एक्सेस करवाना है किस यूजर के द्वारा कस्टमाइज करके। साथ ही आप स्टोरेज मैनेजमेंट यहाँ पे कवर अप करेंगे। स्टोरेज मैनेजमेंट में आपका टोटल आएगा जिस तरीके से आप स्टोरेज को मैनेज कर सकते हैं लिनक्स मशीन में, जैसे बेसिक स्टोरेज मैनेजमेंट और लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजमेंट, तो ये सभी आपको कराया जाएगा इसके अंदर। साथ ही SC लिनक्स आपको कराया जाएगा। SC लिनक्स जो होती है लिनक्स की सिक्योरिटी होती है, जिसके द्वारा किसी भी फाइल और फोल्डर की जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स है उन्हें कंट्रोल किया जाता है, कि कौन एक्सेस कर सके या कौन सी सर्विस किस फाइलों को किस डायरेक्टरी को एक्सेस कर सके, दैट विल बी डिफाइंड। ओके, सो इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किस चीज को कैसे एक्सेस करवाना है, तो SC लिनक्स के द्वारा वो भी सेट किया जा सकता है। तो दिस विल ऑल्सो कवर अप इन दिस। और रूट का पासवर्ड कैसे रीसेट करना है, बूट प्रोसेस को समझना लिनक्स की, तो ये सभी चीजें इसमें आती है। और फायरवॉल को मैनेज करना और
कंटेनर्स को मैनेज करना या कंटेनर्स कैसे यूज करने हैं पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे RSSI ट्रेनिंग के बाद क्लियर हो जाएगी। तो these are the major topics actually. These are the major topics that will be covered up or that will be understood by you after completing this session. Okay. So these are the things that you will be cover up in this session, basically of the RSSI training that I told you. तो देखिए कंटेनर क्या होता है बेसिकली, अगर हम कोई इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वर्चुअल मशीन पूरी डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर के थ्रू भी उसको यानी कि एक रेडीमेड इमेज का यूज करके प्रोवाइड करा सकते हैं इंडिविजुअल सर्विस को भी। तो सभी चीजें भी इसमें कवर अप की जाएंगी। तो ये मैंने केवल शॉर्ट समरी डाली है। एक्चुअली इसमें जो RSSI ट्रेनिंग है उसमें 30+ टॉपिक्स है, मतलब यू कैन से दैट 30+ चैप्टर्स है। तो मैंने जो खास पॉइंट है वो इसमें रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। तो ये चीजें हैं। तो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टू RSSI ट्रेनिंग गाइस अभी तक? नो सर। ओके, सो अभी मैं एक आपको लैब कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा रिगार्डिंग टू वेब सर्विस, या यू कैन से दैट बेसिक वेब सर्विस डिप्लॉयमेंट। तो इसके एक लिए मैं क्वेश्चन आपको, और, हाँ पूछिए। जो ये विंडोज सर्वर होते हैं जो कॉर्पोरेट में लगे होते हैं, और देन जो रेड हैट के सर्वर जो लिनक्स बेस्ड सर्वर हैं वो लगे होते हैं, देन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? अब वो देखिए हाँ कंटिन्यू प्लीज रंजन। दोनों एज अ सर्वर, जो सर्वर है वो भी सर्वर वर्क करता है और देन ये भी सर्वर वर्क करते हैं, तो फिर बेस्ट प्रेफरली नोट, अगर वो सिक्योरिटी वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है देन तो भी ओनली सर्विस के लिए रेड हैट यूज करेंगे। देखिए अगर क्राइटेरिया की बात की जाए तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है रेड हैट से कि ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी सर्विसेज और एप्लीकेशंस आपको फ्रीली अवेलेबल है। रेदर देन अगर हम ये चीज छोड़ भी दें कि RHEL जो है एक CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और माइक्रोसॉफ्ट जो है GUI प्लस CLI दोनों ही अवेलेबल है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जो है दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आपको बता दूं जो GUI इंटरफेस है वो काफी इजी है मैनेज करना, सारी चीजें बाय माउस आप टैगल कर सकते हैं। यस सर। और काफी मतलब पॉपुलर भी है, ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में माइक्रोसॉफ्ट का स्कोप कम है, काफी हैवी स्कोप है माइक्रोसॉफ्ट का भी। बट वहाँ पे आप देखिए डे बाय डे डिक्रीमेंट आ रहा है, क्योंकि देखिए लोग ओपन सोर्स की तरफ ज्यादा स्विच कर रहे हैं। जहाँ पे पहले रेडिट का रेशो मार्केट में एज ए सर्विस प्रोवाइडर या एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत कम रेशियो था, आज के टाइम में वो काफी वास्ट हो चुका है। और इसकी जो सिक्योरिटी पैरामीटर, जैसे कि मैंने बताया अभी कि काफी सिक्योर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है जिससे कि वायरस वगैरह का जो इशू होता है वो बहुत रेयर केसेस में आता है ना। तो ये भी एक रीजन है। और जो आपका कोस्टिंग है रेडिट के साथ वो कब रहता है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट। तो कोस्टिंग के अगर मतलब नजरिए से देखा जाए तो उसके बिहाफ पे भी आपको ये कह सकते हो कि रेडिट जो है प्रोडक्शन में ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है एज कम्पेयर टू माइक्रोसॉफ्ट अगर देखा जाए। और बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी आप देखेंगे अगर आप आगे की ट्रेनिंग्स, क्योंकि देखिए मेरा यहाँ पे फोकस केवल RSSI की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे प्ले बुक्स है RSC में आप कवर अप करते हैं, जिनका इस्तेमाल ऑटोमेटिक टास्क परफॉर्म करने के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। एंड सिविल लैंग्वेज के द्वारा आप वो चीज कर सकते हैं और बहुत मतलब इजीली टैकल कर सकते हैं नेटवर्क में सर्विसेज को। आपको बार बार मशीनों पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इंडिविजुअल मशीन को कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा। ठीक है रंजन सर? एक और क्वेश्चन अभी आया देन, जैसे कि अभी किसी भी कॉर्पोरेट में अगर सर्वर इंस्टॉल है, देन जो भी इंडिविजुअल सिस्टम उससे अटैच रहते हैं, सर्वर के थ्रू जो भी सिस्टम अटैच रहते हैं,
हाँ, क्लाइंट मशीन्स। हाँ जो भी, हाँ जो भी मशीन अटैच रहते हैं, देन हम्म। उनमें भी हमें रेड हैट की जरूरत, लिनक्स की जरूरत पड़ेगी, या हम उसमें भी रेड हैट की जरूरत पड़ेगी अगर हमने सर्वर रेड हैट का इंस्टॉल कर रखा है तो? देखिए, अगर हम बात करें रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये माइक्रोसॉफ्ट को भी सर्विसेज दे सकता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट के क्लाइंट को भी सर्विसेज दे सकता है, और लिनक्स प्लेटफॉर्म के क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे सकता है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज ऐसी है जो विंडोज के लिए भी रेड हैट में अवेलेबल है। जैसे सामर सर्विसेज है, वो विंडोज में भी काम करती है, लिनक्स के लिए भी काम करती है ना। तो कुछ सर्विसेज ऐसी है जैसे जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर द माइक्रोसॉफ्ट क्लाइंट ऑल्सो। ओके, तो ये चीज है, आप दोनों प्लेटफॉर्म के लिए यूज कर सकते हो रेड हैट को। ओके रंजन, आर यू गेटिंग द आंसर or any other doubt regarding to this? Ranjan, please update. Okay, someone says Nitish Kumar, is any certificate mandatory to have to get into cyber security? Please tell me, sir. देखिए, अगर आप रेड हैट की ट्रेनिंग लेते तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए, ठीक है, बिकॉज if you have a global certification, then that have a which is actually in your profile. So अगर आप सर्टिफिकेशन करते हैं तो बेस्ट है, बट अगर आप ट्रेनिंग भी लेते हैं तो इट्स गुड फॉर साइबर सिक्योरिटी डोमेन, नो इशू। तो दोनों के लिए दोनों ही चीजें अच्छी है। Yes, yes, Robert. So certification is suggested because अगर आप कोई चीज पे certified हो, then you can also uh, say for that कि I'm certified for this, to do this actually. So that is मतलब एक identity provide कराता है आपको, और after that you can also go for the job if you have the certification easily. So that thing actually. Okay. So can we start the lab session now for deploying web service using the Linux machine? Yeah, sure. Okay. So देखिए, after this demonstration regarding to Red Hat Linux training and certification, we have to perform a lab for web server deployment using RCL9. Nitish Kumar, is BCA degree enough for GET? Yes, it's enough for that. No issue. You can start with system administration domain. Okay. So for this देखिए, इस lab को perform करने के लिए I have two machines basically. So the first machine work as a server, okay, Linux server, and one more machine that I have that will work like a client. Okay, so I have two machines for that. Let me show you. So this is VMware software, and we can create multiple guest machines, or you can say that get guest virtual machine in this platform, and we can run multiple virtual machine on its host machine using this software. Okay, so in this software I have two machines. One is my web server on RHL9, and one is client in RHL9. Okay, so these two I have. So let's start these two machines. So you can see that. Okay, one more thing guys, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो आपके यूजर्स होते हैं लिनक्स मशीन पे, जब आप लॉगिन कंसोल देखोगे, खास तौर पे आप अगर GUI इंटरफेस यूज कर रहे हो लिनक्स मशीन का, तो उसके लिए GUI प्लस CLI, तो ये इंटरफेस इस तरीके से दिखाई देगा आपको RHL9 के अंदर।
और यहाँ पे जो है आपके कुछ यूजर्स दिखाई देंगे, बट जो लिनक्स मशीन होती है इसमें जो सुपर यूजर अकाउंट होता है वो आपका होता है रूट का, ठीक है, दैट हैव फुल कंट्रोल ओवर द लिनक्स मशीन। तो अगर आपको उससे लॉगिन करना है तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होता है नोट लिस्टेड यूजर, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अभी मैंने कोई भी अदर यूजर से लॉगिन नहीं करना, क्योंकि इसके लिए मुझे इनको परमिशंस देनी होगी, तो वो एक डिफरेंट लैब हो जाएगी। बट अगर मैं रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ जो कि लिस्टेड नहीं होता बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे, तो उससे मैं ये चीज परफॉर्म कर पाऊंगा इजीली, ठीक है। तो दोनों मशीनों पे मैं रूट यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। सर तो यस प्लीज आस्क। सर एक क्वेश्चन है कि जो विंडो सर्वर होते हैं, विंडो सर्वर के अलग आता है, और जो विंडो सर्वर होते हैं वो अलग आते हैं, और देन जो विंडो क्लाइंट के होते हैं वो अलग होता है। हाँ डेफिनेटली। हाँ, बट जैसे मैंने रेड हैट में ऐसा अब तक नहीं देखा सर कि क्लाइंट का अलग हो सर्वर का अलग हो, या मुझे नहीं मिला। देखिए नहीं नहीं, एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको। जो मेजर कंपनीज है वो RHEL को ही यूज करती है एज ए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स को ही यूज करती है एज ए सर्वर, ठीक है। ओके। क्योंकि देखिए इसका जो सपोर्ट होता है वो फुली सपोर्ट अवेलेबल है रेड हैट के द्वारा, सपोर्ट टीम के द्वारा। तो आप इसकी कोई भी अगर इशू आता है सर्विस डिप्लॉयमेंट में, तो आप रेड हैट से सीधे कनेक्ट करके, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन लिया होगा प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में, तो आपको फुली सपोर्ट करते हैं। जो भी पैचेस होते हैं उसके वो अपडेट के तौर पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। कोई भी कॉन्फ़िगरेशन इशू आता है तो उसमें हेल्प करते हैं। तो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में तो आपको मोस्टली यूनिक्स और RHEL ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर सर्वर के तौर पे देखा जाए, और क्लाइंट के तौर पे तो आप किसी भी क्लाइंट को यूज कर सकते हैं, जैसे उबंटू है उसको यूज कर लीजिए। ओके ये, ओके ओके ओके। या मिंट है, सेंटोस है, आप इसको भी। पैरेट 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 को भी यूज कर सकते हैं, पैरेट ओएस। हाँ बिल्कुल। ओके so that will be the point, okay। ओके। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे आपको रूट यूजर से लॉगिन करके दिखाता हूँ सबसे पहले, तो रूट यूजर देखिए यहाँ पे लिस्टेड नहीं होता, मैं फिर से बताना चाहूंगा। तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा रूट, और उसके बाद जो भी उसका पासवर्ड आपने दिया होगा लिनक्स मशीन पे वो आपको डालना होगा। अगर आप क्लाइंट भी अभी लॉगिन करना चाहे तो लॉगिन कर सकते हैं, बट ये मैं बाद में लॉगिन करूंगा। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, अगर आप वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो उन्हीं स्टेप को बेसिकली हम लोग फॉलो करेंगे। फिर क्या क्या आपको करना पड़ेगा, लेट मी शो यू यूजिंग वन नोट। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना हमें सर? देखिए इस चीज के लिए मैं आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता, बट इफ इट इज पॉसिबल देन आई विल डेफिनेटली शेयर, ओके। You can share your mobile number with your name in the chat box. Everyone can share your mobile number with the name in the chat box. Okay. If they think, actually, it's not mandatory, guys. Remember this thing. If they want to share, then they can share. So let me take this. So firstly, if we want to create a web server, firstly we need a machine that have RHEL 9, okay, or Red Hat Enterprise Linux, okay, in the machine installed। और इस मशीन के ऊपर आपको क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले जो है आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करनी है, क्योंकि देखिए अगर आप वेब सर्विस की बात करते हो तो नेटवर्क में आपको सर्विसेज देनी होती है। जैसे बहुत सारे क्लाइंट आपके होंगे जिनको आप वेब पेज डिस्प्ले कराना चाहते हो, है ना। तो वो तभी होगा जब वो नेटवर्क में कनेक्टेड होगी प्रॉपरली, है ना। तो ये कनेक्टिविटी आपकी होनी चाहिए, मतलब आपका जो सर्वर है उस नेटवर्क स्विच से जुड़ा होना चाहिए प्रॉपरली, और आपकी जो कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर आनी चाहिए। तो पहला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग रहेगा, जो क्लाइंट है वो सर्वर तक कनेक्ट हो सके, ओके। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग।
तो we have to need to check the TCP/IP setting. Okay, first thing, that include IP address and some other things. तो हमें मेनली यहाँ पे IP address की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी चीज है यहाँ पे हमें जो वेब सर्वर है, जो मशीन है RSL 9, उस पे वेब सर्वर पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो पैकेज इंस्टॉलेशन करना है हमें। ओके, सो वी हैव टू डू दिस आल्सो। तीसरा स्टेप हमें क्या करना है, उसकी जो फायरवॉल में है एंट्री करनी होगी, और या यू कैन से दैट ऐड दैट सर्विस टू फायरवॉल या फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एंड लास्टली आपको जो वेब पेज डिस्प्ले कराना है वो आपको चाहिए। ओके, तो कॉपी द वेब पेज that you want to deploy. तो ये चीज आपको करनी पड़ेगी बेसिकली, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हो, RSL मशीन पे ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो। someone asked the question ki okay, few questions are there guys. Hello sir, I don't use Kali Linux. हाँ देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों में से 2-3 कैंडिडेट ने पूछा कि काली लिनक्स को प्रोडक्शन में क्यों यूज नहीं करते। देखिए, काली लिनक्स जो होता है या बैकट्रैक या कुछ ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए होते हैं, कि जिनसे नेटवर्क को स्कैन किया जा सकता है और सर्विसेज के स्टेटस या पोर्ट्स चेक किए जा सकते हैं कि विच पोर्ट्स आर ओपन और क्लोज। सो राइट दिस एक्टिविटी वी कैन परफॉर्म, मतलब सिक्योरिटी सेटिंग्स पैरामीटर को चेक कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो यूज किए जाते हैं टूल्स जिनके द्वारा ये चीजें परफॉर्म की जाती है, दे आल्सो हैव सम मिलिशियस एक्टिविटीज और मिलिशियस पोर्ट्स, जिसके बिहार पे ये चीजें एनालाइज कर पाते हैं। तो उसकी डिजाइन उसको उस तरीके से डिजाइन किया जाता है, क्योंकि देखिए ये अपनी जो सिक्योरिटी पैरामीटर होता है काली लिनक्स, वो ज्यादा नहीं रखता है। उसको केवल इस चीज से मीनिंग निकलता है कि आप इसको यूज किस पर्पज के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप नेटवर्क में स्कैनिंग करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आपको अपने सिक्योरिटी पैरामीटर भी कम करने पड़ेंगे। तो काली लिनक्स इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऑलरेडी जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स होते हैं बहुत लेस होते हैं। तो अगर उसमें सिक्योरिटी पैरामीटर लेस है प्रोडक्शन में, उसको कैसे यूज कर लेंगे, वो खुद उस चीज के लिए यूज किया जा रहा है ना। तो इसीलिए वो रिलायबल नहीं है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में सर्विस डिप्लॉयमेंट के लिए। केवल उसका इस्तेमाल सिक्योरिटी एनालिस्ट और हैकर्स करते हैं, जिससे कि वे चीज़ों को फाइंड आउट कर सके, लूप होल्स को फाइंड आउट कर सके, पोर्ट स्कैन कर सके और सम अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके फॉर द साइबर सिक्योरिटी और अदर थिंग्स। ओके, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। ओके, आर यू गेटिंग गाइस? गुड। सो एनी अदर क्वेश्चन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन RSL 8 एंड 9? देखिए, काफी सारे चेंजेस है RSL 8 और 9 के अंदर। तो जैसे कि आप अगर RSL 9 की बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी पैरामीटर भी अपडेट किए गए हैं, है ना। तो कुछ पैकेज रिमूव कर दिए गए हैं जो पहले RSL 8 में अवेलेबल थे। ओके, तो कुछ चेंजेस किए गए हैं RSL 8 और 9 में। जब भी आपका जो चीज़ इन्हेंस की जाती है उसको अपडेट करके नया वर्जन लाया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे इसके। तो अभी हम लोगों का जो देखिए पर्पस है वो मेनली ये वेब सर्विस डिप्लॉयमेंट है। सर ये चारों पॉइंट, सर मेरे को एक पॉइंट में दिक्कत है सर, ये ऊपर वाले TCP/IP सेटिंग। अच्छा, ये आपको पता नहीं लग रहा है कि TCP/IP सेटिंग्स क्या है ना? यस सर। हाँ देखो, जो हमारा सर्वर होगा उस पर एक IP एड्रेस जरूर होगा, है ना। ओके। IP एड्रेस होता है ना, यस सर। जिसके द्वारा नेटवर्क में इस सर्वर को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। यस सर।
गेटिंग? तो वो Yes. आईपी एड्रेस हमें पता कैसे लगेगा? तो हम ये चेक कर सकते हैं ना टीसीपी आईपी सेटिंग चेक करके। तो उसके लिए हम कमांड चलाएंगे जिससे कि हमें ये टीसीपी आईपी सेटिंग शो करेगा। ओके, Okay. तो वी विल चेक दैट। तो देखिए अभी मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा लैब को, क्योंकि ये हमने जो सेशन रखा था ओनली 1 आवर का रखा था, बट ये एक्सटेंड हो रहा है डेफिनेटली। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, लैब को परफॉर्म करेंगे फर्स्टली। ओके, आफ्टर दैट लैब वी विल टेक few more question if anyone wants to ask. Okay, so can we proceed, guys? Okay, sir. Good. So firstly here we have to come. So this is my server machine and हम यहाँ पे CLI पे जाएंगे। ओके, तो CLI में हम लोग चले गए। देखिए फॉन्ट आपको विजिबल है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे। इट्स विजिबल गाइस, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. Yes. ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा CLI इंटरफेस है जिस पे हम काम करेंगे। ओके, यू कैन से दैट सेल टर्मिनल। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, देखिए मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पे रूट यूजर से लॉगिन किए हैं और हमारी जो मशीन है जिसका नाम वेब सर्वर है उस पर हमने लॉगिन किया हुआ है। ओके, और हम लोग जो है रूट यूजर की होम डायरेक्टरी में वर्किंग है करेंटली। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, TCP IP सेटिंग चेक कर लेते, और उससे पहले हम NIC को ऑफ कर लेते। वैसे ऑलरेडी NIC आप है, बट फिर भी आपको अपडेट करा दूं, उसके लिए आप ये कमांड चला सकते हो nmcli कनेक्शन अब, और NIC का नाम जो भी आपका NIC का नाम है, डिफॉल्ट में ENS 160 होता है आपका NIC का नाम। तो वी हैव टू टेक दिस। ओके, सो NIC जो है आपका इनेबल हो चुका है प्रॉपरली, और अब हम जो है TCP IP सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास IP config if config कमांड होती है जिसका इस्तेमाल करके हम TCP IP सेटिंग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा इंटरफेस है। सर ये तो नेटवर्क एरर की वजह से मैं सुन नहीं पाया सर, एक बार ये रिपीट कर सकते हैं क्या? MICIL क्या था सर? देखिए ये आपकी कमांड होती है नेटवर्क इंटरफेस को ऑफ करने के लिए। NMCLI होता है नेटवर्क मैनेजर, जो कि CLI इंटरफेस के द्वारा आप यूज कर रहे हैं, मतलब कमांड लाइन के द्वारा यूज कर रहे हैं, और इसके द्वारा आप ENS 160 NIC को ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कमांड ये काम करता है। ओके, तो ये मैंने देखिए यहाँ पे TCP if config से ये TCP IP सेटिंग चेक की है। तो यहाँ पे मेरे को जो IP मिल रहा है iNet IP वो 1.130 है, 192.168.1.30. Okay, so this is my IP address and this is my subnet mask broadcast IP, but I need only this thing to tell you this is my IP address and this is my host. So these are the two things that we require for that. तो अगर हमें NIC की सेटिंग चेक करनी है तो हम if config या IP एड्रेस कमांड से भी हम ये सेम चीज कर सकते हैं, IP स्पेस एड्रेस। तो उससे भी हमें ये चीज पता लग जाएगी जो हमारे TCP IP सेटिंग है उस पे IP एड्रेस क्या है। ओके, सो मुझे मेरे सर्वर का IP मिल गया है जो कि है 1.30। ओके, सबनेट मास्क 24 है, दैट्स ओके। और अभी मुझे क्या करना है, इस पे दूसरा टास्क परफॉर्म करना है, जो कि मुझे एक पैकेज स्टोर करना पड़ेगा कि जिससे मैं वेब सर्विसेज डिप्लॉय कर सकूं, है ना। तो इसके लिए जो पैकेज होता है वो HTTPD पैकेज होता है जिसको हमें यूज करना है। बेसिकली पैकेज का नाम है HTTP। ओके ओके, सो HTTPD पैकेज स्टोर करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी। बेसिकली रेपोजिटरी अगर इसमें नहीं क्रिएटेड है फिर आप मुझे लेट मी चेक। ओके, डिफॉल्ट रेपोजिटरी है, तो मुझे एक लोकल रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके द्वारा मैं पैकेज इंस्टॉलेशन कर पाऊँ इस पे, क्योंकि अभी मेरी रेपोजिटरी क्रिएटेड नहीं है। तो रेपोजिटरी कैसे क्रिएट की जाती है, रेपोजिटरी होती क्या है, बेसिकली एक मेटा डेटा होता है, यानी कि एक डेटाबेस रेफरेंस होता है जहाँ से हम पैकेज को पिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो हमें रेपोजिटरी में डिफाइन करना होता है जिसका एक्सटेंशन .repo होता है। ओके, तो लिनक्स में रेपोजिटरी कैसे बनाते हैं हम रेपोजिटरी वो आप देख लीजिए एक बार, जो कि इसी में आपको मैं बता देता हूँ।
तो उसके लिए हमें विम एडिटर का यूज करके एक फाइल बनानी है yum.repos के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक लोकल रेपोजिटरी बना देता हूँ server.repo करके। ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर फॉर दिस, आपको यहाँ पे पैकेज की लोकेशन बतानी जहाँ से आपको पैकेज पिकअप करने हैं। पैकेज मतलब आरपीएम पैकेज जिनको स्टोर करना होता है। जैसे हमें वेब सर्वर के लिए HTTPD का पैकेज चाहिए, तो हम इंस्टॉल तभी कर पाएंगे जब हमारे पास रेपोजिटरी होगी। अगर हम आरपीएम कमांड का यूज करके पैकेज इंस्टॉलेशन करते हैं तो उसमें हमारी जो डिपेंडेंसीज होती है वो इंस्टॉल नहीं होती है ना। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रेपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, दैट्स राइट। तो उसके लिए मैं रेपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ। पहले रेपो आईडी यहाँ पे मार्क कर देते हैं। रेपो आईडी आप कोई भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जैसे आपने दे दिया इस पे एपस्ट्रीम ही नाम दे दिया। एक्चुअली इसमें 2 फोल्डर होते हैं जिनके अंदर मेनली पैकेज होते हैं RHL9 की आईएसओ के या RHL मशीन की जो आईएसओ फाइल होती है या डीवीडी होती है। अगर आपके पास आईएसओ है तो बेस्ट है। उसके अंदर जो पैकेजेस होते हैं 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। 8 और 9 जो वर्जन है लिनक्स के, उन दोनों में ही 2 डायरेक्टरी आपकी मिलेगी जिनमें पैकेजेस होंगे। जिसमें एक का नाम होगा एफस्ट्रीम जिसमें एप्लीकेशन संबंधित पैकेजेस होंगे, और एक होगा आपका बेस ओएस जिसमें आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सपोर्ट के पैकेजेस हो। तो आपको उन दोनों की पाथ यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे देने होंगे जिससे कि आप उनसे पैकेज पिकअप कर सकें। ओके, तो अभी तो मैंने खाली नाम दिया है एपस्ट्रीम। ओके, एपस्ट्रीम रेपो कर देते हैं इसको। ओके, एंड द सेकंड थिंग यू हैव टू गिव द पाथ। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो कीवर्ड होता है बेस यूआरएल होता है, और वी हैव टू फाइंड मार्क फाइल हियर एंड कोलन ट्रिपल स्लैश। ओके, तो ट्रिपल स्लैश इसलिए यूज किए गए हैं, जनरली हम रूट के अंदर से पाथ पिकअप कर रहे हैं। तो मैं मान के चलो मेरा जो लोकेशन है वो MNT जो कि डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है, माउंटिंग पॉइंट होता है डिफॉल्ट आईएसओ के लिए या CD रोम या DVD के लिए। तो इसमें मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं माउंट करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी यूज कर रहा हूँ RHL नाम से, जिसके अंदर मैं एफ स्ट्रीम नाम का पार्ट दे देता हूँ। एफ स्ट्रीम जो है इस तरीके से लिखा होता है, क्योंकि लिनक्स एक केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसको ऐसे ही मार्क करना है जैसे उसमें मार्क होगा डायरेक्टरी के नाम। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है एंड देन इसको इनेबल करना है। इनेबल मीन्स वी वांट टू इनेबल दिस रेपोजिटरी, मतलब ये स्टार्ट हो जाए, ये काम करना चालू कर दे। ओके, तो वी हैव टू मार्क इनेबल्ड equal to 1 for this, and one more thing GPG check equal to 0। अच्छा देखिए, GPG जो होता है GNU प्राइवेसी गार्ड होता है, जो कि एक तरीके से एप्लीकेशन की जो ऑथेंटिसिटी होती है, सिग्नेचर होते हैं, जो पैकेजेस होते हैं जो हम इंस्टॉल करते हैं उनको चेक करता है कि वे ट्रस्टेड है कि नहीं। तो मैं अभी इसको 0 रखता हूँ क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू गिव द GPG की, मतलब उसकी GPG की हमें असाइन करनी पड़ती है अगर हमें ये चेक करना है सिग्नेचर के लिए। कभी मैं इसको 0 रख रहा हूँ अभी के केस में। देखिए ये चीज जो है आपको मैं बता रहा हूँ, ये रेपोजिटरी जो है आपको पहले बनानी थी या पहले बनानी चाहिए वेब सर्वर बनाने से, क्योंकि इसी के द्वारा पैकेज इंस्टॉलेशन कर पाओ। तो मैं एक इसके लिए बना देता हूँ, और एक आपका बेस ओएस भी होता है उसके लिए भी कर देता हूँ। इन 5 लाइनों को कॉपी कर लेते हैं। तो ये आपका, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसका नाम है बेस ओएस। तो बाकी मुझे कुछ चेंज नहीं करना गाइस। तो नाउ आई कैन इंस्टॉल द वेब सर्वर पैकेज, और यू कैन से दैट HTTPD पैकेज। ओके, सो अगर मुझे ये चेक करना है कि रेपोजिटरी प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, तो मैं उसके लिए कमांड चलाऊंगा yum repo list
all. तो yes, it's working properly. Okay. तो ये चीज हमारा हो रहा है। अभी मैं माउंट करना पड़ेगा मुझे आईएसओ को, जो कि मेरी डिवाइस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होती है। तो ये मुझे अमेंटी के अंदर करना है, RHEL के अंदर। तो यहाँ पे मैं माउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिवाइस है आपकी नहीं मिल रही है इसको। तो लेट मी चेक यहाँ पे। यस, इट्स नॉट कनेक्टेड। सो व्हाट इज सेइंग? Okay, there is a BitLocker in question. Okay, let me check that right. Yes. Actually, जहाँ पे आपके ISO या पैकेज डेटा होगा वहाँ का आपको पाथ देना पड़ेगा। तो चूंकि वो प्रोटेक्टेड था इसलिए वो माउंट नहीं करता है। इसलिए I have to connect this now. Okay, it's working. So देखिए इस तरीके से मैंने अपनी ISO जो है RHEL 9 की यहाँ पे माउंट कर ली है। और अगर मैं अब इस लोकेशन पे जाके चेक करता हूँ, मेरे पैकेजेस आपको दिखाई देंगे RHEL के। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी ऐप स्ट्रीम डायरेक्टरी है जिसके अंदर एप्लीकेशंस के पैकेजेस होते हैं, और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट के लिए, जो कि बेस कर लेते सीधे। तो HTTPD जो है पैकेज है, मेन पैकेज है, लेकिन इसके सपोर्टिंग में कुछ पैकेजेस और होते हैं जो कि डिपेंडेंसी के तौर पे यूज किए जाते हैं। तो मैं स्टार लगा देता हूँ कि HTTPD से संबंधित जो पैकेज है सभी इंस्टॉल हो जाए, और एंटर कर देता हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन दिखा रहा है रिगार्डिंग टू दिस पैकेज कि आपका जो कुछ डेटा है ऐप स्ट्रीम रेपो से पिकअप करेगा, और कुछ डेटा आपका बेस OS से पिकअप करेगा, और डिपेंडेंसी इस पैकेज की रिजोल्व कर ली गई है। तो ये पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए रिगार्डिंग टू HTTP। ओके, और ये इनकी डिपेंडेंसीज है जिनको ये इंस्टॉल करेगा इसके साथ। ओके, सो अगर आप कंटिन्यू करना चाहते तो यहाँ पे यस और नो बता सकते हैं। Y फॉर यस एंड N फॉर नो। ओके, टोटल साइज ये रहेगा, and press Y, enter. So after that you will see that the package is successfully installed and dependencies are also installed. तो पहली चीज आपकी ये होगी कंप्लीट। और अब आपको क्या करना है, देखिए इस लोकेशन पे जाना है, CD इस लोकेशन पे आपको एक फाइल क्रिएट करनी है जिसको आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक फाइल है जो कि दूसरी लोकेशन पे पड़ी हुई डॉक्यूमेंट के अंदर रूट के। तो मैं उसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं CP करता हूँ रूट के डॉक्यूमेंट से ओके, एंड क्या कॉपी करना है मुझे, इंडेक्स फाइल कॉपी करनी है, index.html, और करंट लोकेशन पे। तो एक फाइल आ गई आपकी index.html, और एक और फाइल यहाँ पे मेरी एक हेल्पिंग फाइल है जो कि एक इमेज फाइल है। I also access that here. Okay, so that is also yes. तो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है गाइस, नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। तो अभी आपको जो सर्विस है उसका स्टेटस चेक करना है, systemctl स्टेटस HTTPD। तो अभी ये इनएक्टिव है क्योंकि अभी मैंने इसको स्टार्ट भी नहीं किया है। इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं एक फायरवॉल में इसको ऐड भी कर देता हूं जिससे कि ये फायरवॉल में ऐड हो जाए और अलाउ करे एक्सेस करने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास जो कमांड होती है वो फायरवॉल CMD होती है, एंड आई वांट टू ऐड द सर्विस, तो $ऐड सर्विस, एंड सर्विस का नाम है HTTP। ओके, देखिए यहाँ पे हम HTTP ऐसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए एक सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। ओके, ट्रस्टेड सर्टिफिकेशन, तो वो अलग थोड़ा सा कंसेप्ट होता है। तो अभी हमें SSL सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वी आर डायरेक्टली यूजिंग द HTTP, एंड इसको मैं परमानेंटली ऐड करना चाहता हूँ, परमानेंट। तो एंटर करेंगे तो ये ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐड हो गई। ठीक है, और इसके बाद जब भी हम कोई फायरवॉल में सेटिंग चेंज करते हैं तो उसके बाद फायरवॉल को रीलोड करना चाहिए हमें। तो मैं लिख देता हूँ फायरवॉल CMD,
$0. ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये फायरवॉल में ऐड कर देंगे। तो आप चाहे तो बूट टाइम पे इनेबल कर सकते हैं HTTP को, तो ये ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो दैट्स ओके। अब हम क्या करते हैं, सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। तो systemctl स्टार्ट HTTP, ओके, तो एंटर। तो अभी हम स्टेटस अगर इसका देखते हैं तो अभी इसका स्टेटस जो है ओके हो जाए। सो नाउ इट्स रनिंग, ओके। सो इस तरीके से हमें क्या करना है, सर्विसेज को क्या करना है, अवेलेबल करा, ओके। तो अगर हमें ये चेक करना हो, देखिए दोनों तरीके से हम चेक कर सकते हैं, CLI के द्वारा भी और GUI के द्वारा भी, मतलब ब्राउजर के द्वारा भी, कि जो आपका वेब पेज है डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं। तो लेट मी शो यूजिंग द वेब ब्राउजर फर्स्ट। तो अभी मैं इसी मशीन पे आपको एक्सेस करके दिखा रहा हूँ, सेम मशीन पे। तो मैं यहाँ पे डालूंगा http:// और IP एड्रेस ऑफ द मशीन। तो IP एड्रेस हमारी मशीन का क्या था गाइस, if config, so it's 130, okay। तो let me continue। Okay, like this you can access, okay, you can see that the web page is displayed, okay। You can also access this web page anywhere। तो जैसे मैं मान लीजिए इस मशीन पे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, लेट मी चेक। ये एक दूसरी क्लाइंट मशीन है गाइज, आप देख सकते हैं। तो इस पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, http://192.168.1.30, you can see that। और welcome to Crow Cyber Security। You can also access using this window machine। अगर आप विंडो मशीन यूज करते हैं तो देखिए, अगर मैं इससे पहले कनेक्टिविटी चेक कर लेता हूँ, उस मशीन पे कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, सो दैट अगर कनेक्शन आ रहा होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। कनेक्टिविटी आ रही है प्रॉपर, कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे वेब ब्राउजर का यूज करके भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो http://1, okay, you can see that same thing is here, okay। Okay guys, it's clear। Yes, सो देखिए, Yes, ये sir. एक बेसिक लैब स्ट्रक्चर था वेब सर्वर का। तो इसमें आप बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो। तो जब आप इस कोर्स को ही ट्रेनिंग गेट करेंगे तो आपको ये चीजें बताई जाएगी, काफी सारी चीजें इसमें एडवांस लेवल पे समझाया जाएगा आपको, चाहे वो फायरवॉल हो, चाहे वो कुछ और चीजें हो। तो ये है, ओके। सो गाइस, you can ask your question if you want, and then after we will close this webinar, okay। So please ask if anyone wants to ask anything। Yes, sir. So my question is कि सर, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले काली लिनक्स का बताया था, तो अपना जैसे जोरिन ओएस है जो यूजर इंटरफेस फ्रेंडली यूजर है, तो जैसे अपन सेम प्रोसेस उस जोरिन ओएस के थ्रू करना चाहे तो देखिए, ग्राफिकल इंटरफेस पे आपको सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती। अगर लिनक्स की बात की जाए, चाहे वो लिनक्स का कोई भी फ्लेवर हो, चाहे वो काली लिनक्स है, चाहे वो कोई भी अदर है, क्योंकि मोस्टली टूल जो है CIS में होते हैं, ओके। तो आपको ग्राफिकली कुछ चीजें मिल जाएगी, जैसे आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, बट आफ्टर एक्सेसिंग दैट एप्लीकेशन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसे CLI से ही ऑपरेट करना पड़ेगा। तो कुछ टूल्स होते हैं जो बेसिकली ग्राफिकल में एक्सेस होते हैं, बट बाद में उनमें भी कमांड आपको यूज करनी पड़ती है। हाँ, ये चीज जरूर है कि अगर कुछ दीदी बहुत ही बेसिक चीजें कर रहे हो आप, तो वो केवल आपको मिलेगी ओनली ग्राफिकली। बट अगर आप टूल्स की बात करते हो, मोस्टली टूल जो है CLI बेस्ड है। कुछ टूल्स को छोड़ दिया जाए तो ये आपको याद रखना चाहिए, ओके। ओके सर, तो मोस्टली चीजेस में भी आपको CLI यानी कि कमांड से ही करना होगा। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? sir, in Red Hat 8 version and 9 version, is it that some command which work in 8 will not work in 9? So does it happen? नो, देखिए, एक्चुअली आपका RHEL 8 की मोस्टली कमांड जो है 9 पे भी प्रॉपर्ली वर्क करती है, मोस्टली कमांड। और कुछ जो चेंजेस है मेजर, वो एडवांस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग है।
देखिए मैं आपको दिखा दूं RHL 8 और 9 के जो कंटेंट है वो मैं आपको शो करा देता हूँ। तो कंटेंट में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है RHSC की ट्रेनिंग में, तो स्पेशली जो चेंजेस है वो टॉप लेवल पे है ना। तो Yes. वो अभी आपको मैं अगर एक्सप्लेन भी करूंगा तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टूड प्रॉपरली। Yes. सो Yes. इसीलिए मैं वो चीजें डिस्कस नहीं की है ना। तो ये चीज एक Okay. रीजन। Okay, sir. Thank you. वेलकम। एनी अदर क्वेरी गाइस? Otherwise, I will close this webinar. No, sir. Sir, one Okay. more question in the chat box. Okay, let me take that. Which subject I need to prepare to get into clear to get entry job, sir? देखिए जॉब की अगर हम बात करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं अभी करंटली? आप व्हाट आर यू डूइंग नितीश? BCA। देखिए अगर आप एक एकेडमिक या प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ टेक्निकली कोर्स आपको करना चाहिए, जिससे कि आपको जॉब जो है इजीली मिल जाए। क्योंकि देखिए कॉलेजेस में आप वो चीज़ें नहीं उस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ का मतलब एक टेक्निकल सब्जेक्ट को उस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता जो कि प्रोडक्शन में यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपको प्रोडक्शन में रियल थिंग्स पे काम करना होता है, रियल सिनेरियोज होते हैं ऑब्वियसली। तो उसके लिए आपको एक टेक्निकल डिप्लोमा लेना चाहिए या किसी भी चीज़ का ट्रेनिंग लेना चाहिए। जैसे आप लिनक्स का ले सकते हैं या साइबर सिक्योरिटी का ले सकते हैं, है ना, जिससे कि आपको उसके बारे में और ज़्यादा अवेयरनेस रहे। ओके, तो प्रैक्टिकल चीज़ें रिक्वायर्ड करती है प्रोडक्शन में अगर आप एंट्री लेवल जो भी चाहते हैं तो। और प्रैक्टिकल आपको देखिए उसके लिए ज़रूरी है कोई ना कोई टेक्निकल डिप्लोमा आपको करना चाहिए। ओके, any other question guys? So can I close this session now guys? Please update me. Yeah, sir. Thank you for this webinar. Thank you guys, thank you for joining this webinar. Thank you very much. Thank Bye bye, you. take care. Was VM set up with a bridge connection? और देखिए अगर आप ब्रिज कनेक्शन यूज करते हैं तो इजीली फिजिकल इन्वायरमेंट में आप कनेक्ट हो जाते हैं। और होस्ट के साथ अगर आपको खाली कनेक्ट करना है तो आप होस्ट का यूज कर सकते हैं, मतलब जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको कनेक्ट करना है मतलब आपको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ तो होस्ट यूज कर सकते हो। ओके, but I will suggest you to use bridge connection to work with physical environment. Okay, and what is the duration? Okay, it's a duration of 65 hours. Okay, RSSC training. If you go for the rapid track, then it will be less actually. Yes, same for that. So no other questions, guys. I'm seeing. Okay. Will you discuss the fee? No, I will not discuss the fee structure actually. You can connect with the sales team for fee structure. Okay. Okay, Nitish Kumar. Okay. Okay, guys. Thank you. Thank you again for joining. Bye bye. Take care. I'm ending the session now.